everyone, and welcome to this session 2 on FanCATstic5. In the last session, we have discussed, we were talking about CAT 2019 slot 1 paper when I've solved 2 passages. Because the passages were slightly heavy, so I have to stop in between. But today I'll be completing 2019 slot 1 paper, all the passages. All the passages will take up the VA part separately when we talk about para jumbles, para summary. And I'm sure, and I've got some good feedback from the students after watching through the video that yes, it is somewhat helpful. I'll try my best to ensure that what students were talking about, that how we can cultivate our reading habits, or what in particular we should read, what kind of sources we should get into. I'll talk about those videos as well. So just hang on and wait for these fantastic videos with me, Prashant. So let's talk about passage 3. Passage 3 के ऊपर हम बात करेंगे पहले. So again, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर किया था, I'll be giving you time to read, stop a video for a while, 7 minutes, read this passage and then start again. Okay, the passage is about what? The passage is about the shopping, right? Yes, sir. That was very interesting topic for us. The passage was all about कितनी वैरायटी हमारे को दे दो, हम लोग कंफ्यूज आ जाते हैं. We get confused the moment we see the options, and that's what the passage was all about. Contemporary internet shopping, the trend, contemporary, which is in the trend, the recent shopping trend conjures a perfect storm of choice anxiety. This is conjuring, this is basically displaying a perfect storm of choice anxiety. कि हमें जब चॉइस दे दी जाए तो किस तरीके से हमारी एंजाइटी बढ़ने लगती है. रिसर्च हैज consistently held that people who are presented with few options make better, easier decisions than those presented with many. If going for matrimonial sites, it will take hell lot of a time. Yes, right? So yes, you are not in that position, but I can give you that answer for sure. So to make decision is difficult, right? Though people say in the news channels that okay, चले जाइए भारतीय whatever matrimonial पे जाके चीजें easy हो जाएंगी, but believe me, ऐसा होता नहीं है. बहुत सारी photos देखने को मिलती है, right? So what they are talking about, so researcher is talking about that those who are presented with few make better, easier decisions than those who are presented with many. If there are many things which is there, we will get confused. Helping consumers figure out what to buy amid an endless sea of choice online has become a cottage industry unto itself. The way we find the cottages on Make My Trip, ये भी अच्छा लग रहा है, इसका room अच्छा है, इसका toilet अच्छा है, इसका atmosphere अच्छा है, इसका ambience अच्छा है. The same thing is happening with shopping sites as well. Myntra पे जाएं, Jabang में जाएं, Click पे जाएं, या फिर Amazon पे जाएं, या Flipkart पे जाएं, और let's say Paytm को explore करें. Let's see, and there are many options that are available on Instagram as well. Many brands and retailers now wield marketing buzzwords. Now they are coming up with the market buzzword. What? Such as curated, right? Specially curated for bold people like you. Our oil is made up of blah, blah, blah things, right? Differentiation. They are coming with differentiation products. That's what they are using the buzzwords for. And discovery, that we have discovered this. A shoes made up of the cotton stuff which will make you teach very easily. You will feel very comfortable even if you, let's say, teach for 12 hours a day, right? One should do that, right? One should target the faculties, right? Online ka zamana hai. That's a good business plan we can think of, right? So many brands and retailers now wield marketing buzzwords such as curation, differentiation and discovery as they attempt to sell an assortment of stuff targeted to their ideal customers. अपने customer को target करने के लिए ये सारे इन buzzwords को use करते हैं. Companies find such shoppers, और company ऐसे लोगों को कहाँ find करती है? Through digital advertising, and COVID was the best period where they can test it very easily, which can catalog people. So now when we go on Insta, when we go on Flipkart, when we go on Google, I'm sure you must be knowing this. So how they catalog people, हम लोग filter कर सकते हैं based on gender, income, personal interest and more. And that's how आपको ad दिखते हैं. Probably एक diaper का ad मुझे दिखेगा, आपको नहीं. Probably एक school bag का, एक college bag का ad, या फिर एक अच्छी सी belt, perfume या watch का ad शायद आपको दिखेगा. आपको शायद fast track का ad दिखेगा, और मुझे शायद let's say polish या fossil का ad दिखेगा. That's the difference, right? So
what they are saying, since Americans have lost the ability, अब now they are talking about Americans in specific, they have lost their ability to sort through the sheer volume of the consumer choice available. वो नहीं differentiate कर पा रहे हैं. घोस्ट नाउ, अब भूत आने शुरू हो गए हैं इस रिटेल मैकेनिज्म, इस रिटेल मशीन के अंदर. घोस्ट नाउ हैज टू बी इन द रिटेल मशीन. और ये घोस्ट क्या है? ये है एल्गोरिथम. ये है एल्गोरिथम. ऐसी एल्गोरिथम लगाई जाए कि प्रशांत को सिर्फ और सिर्फ कैट रिलेटेड चीज मिले, या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे एज के अकॉर्डिंग चीज मिले, या फिर मुझे लेट से प्रॉपर्टी की बात करने की चीज मिले, या फिर मुझे ऑनलाइन कोचिंग के बारे में बात करने की चीज मिले. एल्गोरिथम, इसको वो घोस्ट बोल रहे हैं. इन्फ्लुएंसर, हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट सम स्नैजी एड टेक टू हेल्प अ प्रोडक्ट फॉलो यू अराउंड द इंटरनेट. आप जब जब इंटरनेट खोलेंगे, गलती से अगर आपने नाइकी का शूज देख लिया, वो नाइकी का शू आपका टॉयलेट सीट तक पीछा नहीं छोड़ता है, राइट? द मोमेंट यू ओपन इंस्टाग्राम, और हमें लगता है यार सोचा ही था ये कैसे आ गया. भैया तुम्हारी ट्रैकिंग चल रही है. हाँ, इंडीड चॉइस फटीग, थकान हो जाना, चॉइस से थकान हो जाना. Indeed, a choice fatigue is one reason so many people gravitate towards lifestyle influencers on Instagram. क्योंकि हम खुद चॉइस नहीं कर रहे हैं. हम लोग इंस्टाग्राम के अंदर जो इन्फ्लुएंसर है उसको पकड़ लेते हैं, उसने पहन रखा है तो मैं भी कर लेता हूं. और इसीलिए मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी, अर्जुन कपूर एंड ऑल, दे आर काइंड ऑफ कमिंग अप विद दोज इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ अ थिंग. The relentlessly chick young moms and perpetually vacationing 20 something. So जो यंग मॉम्स हैं वो एक अलग इन्फ्लुएंसर बनी हुई है. 20s के आसपास के जो लोग हैं वो एक अलग इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, जो कि प्रेजेंट क्या कर रहे हैं? एस्पिरेशन. What are they selling is aspirations. Be like us. And then recommend the product and services. और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट और सर्विसेज रिकमेंड कर रहे हैं फॉर अ रिलेटिवली न्यू क्लास ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट स्टार्टअप. अब वो क्या बोल रहा है? यहां तक तो बात हो गई ब्रांड्स के बारे में. अब स्टार्टअप कुछ और कर रहे हैं. स्टार्टअप क्या कर रहे हैं? इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ सी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टफ, instead of making shoes for all the customer, they are coming up with something specific. These companies claim to disrupt. वो disrupt के लिए आए हैं, disruption के लिए आए हैं. ग्लॉसियर जो कि एक मेकअप ब्रांड है, कैस्पर जो कि एक स्पेसिफिकली मैट्रेस का ब्रांड है, और अवे जो कि सूटकेस का ब्रांड है, एंड मेनी अदर्स हैव स्प्राउटेड अप टू ऑफर कस्टमर फ्रीडम फ्रॉम चॉइस. ये सिर्फ एक ही चीज दे रहे हैं, स्पेसिफिक चीजें दे रहे हैं, खरीद लो ना, तुम्हारे को ज्यादा चॉइसेस मिलेंगी ना कुछ, तो इसलिए दे आर वेरी स्पेसिफिक. द कंपनीज हैव अ फ्यू एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड सपोजिटली हाईली फंक्शनल ऑप्शंस. मिड रेंज प्राइसेस में अच्छा खासा फंक्शनल प्राइसेस और अच्छा तरीके से बना हुआ इतनी सी चीज दे रहे हैं, हमें मल्टीपल जगह नहीं जाना. नेक्स्ट, दे आर सेलिंग नाइस थिंग्स, बट मे बी मोर इंपॉर्टेंटली दे आर सेलिंग अ कॉन्फिडेंस. वो अच्छी चीजें तो बेच रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस बेच रहे हैं. और वो क्या है कि एंड एबिलिटी टू ऑप्ट आउट ऑफ द स्टफ रैट रेस, कि हम लोग यही चीज के अंदर स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं और यही चीज हमें बनानी आती है. $1,000 मैट्रेस. सो मैट्रेस कैस्पर की जो बात कर रहा है $1,000 की, एंड $300 का सूटकेस माइट सॉल्व चॉइस एंजाइटी फॉर सर्टेन टियर ऑफ कस्टमर. सो कस्टमर्स को अब यहां पर चॉइस से कोई लेना देना नहीं है, वो सीधा जाके परचेज कर सकते हैं. बट द कंपनीज दैट सेल देम along with those that attempt to message the larger stuff economy into something navigable are still just working within a consumer market that's broken its system base. अब वो क्या बोल रहा है? ये भी जो कंपनीज हैं, ये भी जो कंपनीज हैं जो इसको बेच रही हैं, along with those that attempt to message the large stuff economy into something navigable are still working with the consumer market. भैया ये कंपनी भी कंज्यूमर मार्केट के अंदर ही काम कर रही है जहां पर सारी जनता है. वो क्या बोलना चाह रहे हैं समझने की कोशिश करना. द प्रेजेंस ऑफ सो मच स्टफ इन अमेरिका माइट बी मोर वैल्यूएबल if it were more evenly distributed, but stuff creator वही फोकस कर रहे हैं, those who have plenty. वो क्या बोल रहा है? ये जो स्टार्टअप है ये भी तो कंज्यूमर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं. अमेरिका के अंदर ऑप्शंस तो बहुत हैं, बट ये ऑप्शंस सब जगह सब लोगों को एक्सेसिबल नहीं है. ये एक्सेसिबल उन्हीं को है आज तक भी, चाहे वो कैस्पर हो और चाहे वो ग्लोसरी ब्रांड हो, जिनके पास पैसा है, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं. एज ऑप्शंस हैव एक्सपेंडेड विद
फॉर पीपल विद डिस्पोजेबल इनकम, जो लोग इसको खर्च सकते हैं उसके पास ऑप्शंस और ज्यादा बढ़ गए इन स्टार्टअप के आने से। द अपॉर्चुनिटी टू बाय इवन बेसिक थिंग्स सच एज फ्रेश फ्रूट और क्वालिटी डाइपर हैज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर मच ऑफ अमेरिका लोअर क्लासेस, और जब अमेरिका की जो लोअर क्लास है वो आज भी इसके लिए स्ट्रगल करती है। फॉर स्टार्टअप दैट प्रॉमिस एक्सेसिबल सिंप्लिसिटी, ये जो स्टार्टअप जो बोल रहे हैं बहुत ज्यादा सिंपल है और स्पेसिफिक है, देयर वेरी स्ट्रक्चर स्टिल माइट इवेंचुअली पुश देम टुवर्ड्स ओवरवेलमिंग वर्टी। ये अभी तक तो ठीक है, बट इनका जो स्ट्रक्चर है ये माइट इवेंचुअली पुश देम टुवर्ड्स वैरायटी। हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी बाकियों की तरह बन जाए और वैरायटी सेल करना शुरू कर दे। मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर बेस्ड ऑन $100 of million ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट, पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टर्स का, द इन्वेस्टर्स ऑफ विच टेंड टू एक्सपेक्ट अ स्टीप ग्रोथ रेट। उन्हें ग्रोथ रेट चाहिए इन्वेस्टर्स को, और वो एक ग्रेट प्रोडक्ट से नहीं आएगी, उनको एक्सपेंड करना पड़ेगा। और उसका एग्जांपल उन्होंने दिया है, कैस्पर हैज एक्सपांडेड इनटू बेडरूम फर्नीचर और बेड लिनन्स, जो कि सिर्फ मैट्रेस बनाती थी अब ये बनाने लग गई है। ग्लोसियर आफ्टर इयर्स ऑफ मार्केटिंग इटसेल्फ एज नो मेकअप, वो अभी तक बोलते थे कि इस मेकअप को करने में कोई टाइम नहीं लगता है, दैट रिक्वायर लिटिल स्किल टू अप्लाई। अब उन्होंने पूरी लाइन बना दी है ग्लिटरिंग कलर कॉस्मेटिक्स की। देयर में नो वे टू ऑप्ट आउट ऑफ स्टफ बाय बाइंग इनटू द राइट थिंग। इन राइट चीजों से निकलना थोड़ा, मतलब वो क्या बोला, देयर मे बी नो वे टू ऑप्ट आउट ऑफ द स्टफ बाय बाइंग इनटू द राइट थिंग। इस चीज से निकलना, एक स्पेसिफिक चीज से निकलना, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है और स्टार्टअप भी नहीं निकल पा रहे हैं। दिस वाज द पैसेज इज ऑल अबाउट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, आई मीन क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस पैसेज। आई एम श्योर of this paper, I am sure you must have solved this by now. Which one of the following best sum up the overall purpose of the example which is given in the passage? अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, they were talking about Casper जो कि एक मैट्रेस कंपनी थी, they were talking about Glossier जो कि एक मेकअप की कंपनी थी। इन दोनों कंपनीज स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते थे with a very decent pricing. Which one of the following best sum up the overall purpose? ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया है उसकी बात करते हैं। Let's go to the options one by one. Option number 1, they are facilitating a uniform distribution of commodities. They are not। ऑथर ने साफ साफ बोला था कि ये लोग भी यही काम कर रहे हैं कि जिनके पास प्लेंटी है, जिनके पास ज्यादा है, उसी को फोकस कर रहे हैं। सो इट इज एग्जैक्टली स्टेटिंग अपोजिट ऑफ व्हाट इज गिवन इन द पैसेज, and I'll just show you where exactly they have mentioned the same. Okay, here we go. The presence of so much stuff in America might be more valuable if it were more evenly distributed, but stuff creator tend to focus their energy who already have plenty. तो अगर कोई बच्चा इसको मार्क करता है तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है ऑफ व्हाट इज गिवन इन द पैसेज। लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर 2, दे माइट ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट दे आर एक्सेप्शंस टू। दे आर एक्सेप्शंस ऑफ व्हाट? दे आर एक्सेप्शन ऑफ मेकिंग अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, राइट? दे माइट ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट दे वर एक्सेप्शंस टू। दे आर एक्सेप्शंस कि वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, बाकी ब्रांड की तरह नहीं। और ऑथर ने लास्ट के अंदर क्या बोला है? ऑथर ने बोला है कि फॉर स्टार्टअप दैट प्रॉमिस एक्सेसिबल सिंप्लिसिटी स्टिल माइट इवेंचुअली पुश देम टुवर्ड्स वैरायटी। जो एक्सेप्शन था ये शायद वैरायटी बनने लग जाएगी, और इसी का एग्जांपल उन्होंने कास्पर का दिया है, क्योंकि जो और ज्यादा प्रोडक्ट्स में आना शुरू हो गया है। एंड द सेम इज द केस विद ग्लॉसरी। सो दिस कैन बी माय आंसर। मैं इसके अंदर भी एक एट्रिशन लाऊंगा, सो दिस कैन बी माय आंसर। इसको मैं मार्क कर देता हूं। Third, they are exceptions to a dominant trend in the consumer market. They are exceptions to a dominant trend in consumer market. अब इस प्रॉब्लम है इसके अंदर एक, वो प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत ही ब्रॉड ऑप्शन हो गया, ये बहुत ही ब्रॉड ऑप्शन हो गया है। सर ब्रॉड क्यों? आपके हिसाब से सर ये ब्रॉड क्यों हुआ है? देखो, वो बोल रहा है ट्रेंड, ये एक ट्रेंड है। हम यहां बोल रहे हैं डोमिनेंट ट्रेंड इन द कंज्यूमर मार्केट। पॉइंट नंबर 1। अब यहां पर वो डोमिनेंट ट्रेंड किस चीज का है वो स्पेसिफिकली नहीं बता रखा, और यहीं पर मैं बोलता हूं पेपर सेटर आपके लिए ट्रैप्स बिछा के रखता है।
इस ऑप्शन को मैं ब्रॉड कैटेगरी के अंदर लेता हूं, दैट यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ कैस्पर और ग्लॉसरी की बात, यहां पर एक ट्रेंड, वो ट्रेंड कौन सा है, द एंजाइटी ट्रेंड व्हेन कंज्यूमर गेट इनटू many options for shopping. Now यहाँ पर dominant trend of what, and I don't know if this is a dominant trend or not. It's a very broad option. मार्क कर लो, मैं बता रहा हूं, आप जो हमेशा बोलते हो कि दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा नहीं है, पेपर सेटर तुम्हारे साथ खिलवाड़ करता है, राइट। फोर्थ ऑप्शन, they are increasing the purchasing power of poor Americans. They are not doing anything. Purchasing power poor Americans के लिए कुछ नहीं कर रहे. Now with this we are coming to the conclusion that second option is the right answer. अब मैं यहां पर भी आपको एक छोटा सा एट्रिशन दे रहा हूं, जो मैंने बोला था कि पेपर सेटर और आपके साथ कैसे खेल सकता है। अगर मान लो पेपर सेटर या माइट की जगह विल लिखता है, कई बार करेगा पेपर सेटर, एक माइट का ऑप्शन होगा और एक विल का ऑप्शन होगा, तो ये विल वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा, बिकॉज अब सोचो, इस पैसेज को पढ़ो, इस ऑप्शन को पढ़ो, दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट दे वर एक्सेप्शन टू, मतलब तुमने भविष्यवाणी कर दी, ऐसा तो होगा ही होगा। You can't do that. You can't anticipate that. You can't forecast that. आप ज्योतिषी नहीं है। So will make this option very extreme. ये उसको बहुत ही extreme कैटेगरी के अंदर ले जाएगा, इसीलिए हम इसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे अगर यहाँ पर will होता तो। बिकॉज यहाँ पर माइट है और ऑथर ने भी यहाँ पर माइट की बात करी है, इसीलिए हम सेकेंड ऑप्शन को मार्क कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आई एम श्योर ये समझ में आया होगा। Please, and as I said, that comment section के अंदर do give me the feedback if you want something more or if you want the explanation to be more explanatory or something like that. A new food brand plans to launch a series of product. एक नया food brand है, उसने एक series of product launch करने का प्लान किया अमेरिकन मार्केट के अंदर। Which of the following product plan is most likely to be supported by the author of the passage? इनमें से कौन सा प्लान है जो ये ऑथर अंकल सपोर्ट करेंगे? अब मैंने आपको बोला था एंटीसिपेट, आप एंटीसिपेट करेंगे, ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। अब ऑथर क्या बोल रहा था, ऑथर ने दो तीन चीजें जो बोली थी, एक ऑथर ने बोला था स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की बात करी थी, ठीक है। दूसरा ऑथर ने बोला था आप सब अमेरिकन्स के पास जाओ, आप यूनिफॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूट करो सो दैट बाकी अमेरिकन जो कि पुअर हैं वो भी उसको एक्सेस कर पाए। ये दो चीजों की उसने बात करी थी। लेट्स गो टू द ऑप्शंस। सो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहे हैं या फिर हम उसको एक कम दाम में रखने की बात कर रहे हैं, उससे एक चीज तो तय है कि मैं ये दो ऑप्शन तो हटा दूंगा, बिकॉज मुझे उससे, हम ये चाहते हैं कि बेसिक नेसेसिटी, उससे देखो साफ साफ यहां पर क्या बोला था, जहां उसने डायपर का एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेंबर, हियर वी गो। सो what they are saying, as options have expanded for the people with disposable income, the opportunity to buy even basic things such as fresh food or quality diaper has contracted much of America lower classes. So इसीलिए मेरा $10 और $25 हट गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन रह गए हैं, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, a range of 10 product price between $5 and $10, a range of 25 products price between $5 and $10। पॉइंट इज, मुझे नंबर ऑफ ऑप्शंस भी लिमिटेड रखने हैं, क्योंकि वो साफ साफ बोल रहा था स्पेशलाइज रखो, कम रखो। आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 2 एज एन आंसर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पीड तो है ही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो है ही, बट जो मैं हमेशा बोलता हूं, इट इज ऑल्सो लॉजिक। You can apply the logic and you can get maximum answers. There are students who get worried, sir, fact based question नहीं आते हैं कैट के अंदर। We are talking about 60% of the paper having inference based questions. I say you should be happy with this. You should be happy with this because आपको पैसेज का लॉजिक, मेन आइडिया एक बार समझना है। अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, you will spend your time, will waste your time searching for the answers. But if you get inference based question, if you have comprehended the passage well, you will get the answer very easily. With this, let's move to question number 13. Based on the passage, all of the following can be inferred about consumer behavior except। बेस्ड ऑन द पैसेज, आप बाहर का ज्ञान नहीं लगाएंगे और पैसेज के बेस पे बताएंगे कि तीन चीजें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताई जा सकती हैं, एक नहीं बताई जा सकती, वो कौन सी है, चलो देखते हैं। टू मेनी ऑप्शंस हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर टू ट्रस्ट प्रोडक्ट।
बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, इस वजह से कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट ट्रस्टिंग में इशू आ रहा है, और ये तो दिया हुआ ही था इसलिए वो इन्फ्लुएंस वगैरह की बात कर रहे थे। सो फर्स्ट ऑप्शन चला गया टू, ये तो स्टार्टिंग ही यही था, इसलिए मेरा पहला ऑप्शन चला गया। दूसरा, कंज्यूमर टेंड टू प्रेफर प्रोडक्ट बाय स्टार्टअप ओवर दोज बाय एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। कंज्यूमर टेंड टू प्रेफर प्रोडक्ट्स बाय स्टार्टअप, क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज दे रहे हैं, क्योंकि वो एकदम अच्छे दामों में दे रहे हैं। सो कंज्यूमर टेंड टू प्रेफर प्रोडक्ट बाय स्टार्टअप ओवर दोज बाय एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, राइट? सो ये आंसर भी नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर भी नहीं होगा। थर्ड, हैविंग टू मेनी प्रोडक्ट ऑप्शंस कैन बी ओवरवेलमिंग फॉर कंज्यूमर्स। बहुत ज्यादा जो अगर ऑप्शन अगर आप दे दोगे कंज्यूमर्स को, अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स को ऑप्शन दे दोगे तो इट कैन बी ओवरवेलमिंग फॉर कंज्यूमर्स। यस इट इज गिवन हियर। Consumers are susceptible to marketing images that they see on social media। इसलिए हम इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्यूरेटिंग और इसकी बात कर रहे हैं, तो ये भी आप इन्फर कर सकते हो। तो सर आंसर कौन सा है? तो सर आंसर कौन सा है? अब आप समझना आंसर कौन सा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वापिस आएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम क्या आंसर मार्क करना चाह रहे हैं यहाँ पर। टू मेनी प्रोडक्ट ऑप्शंस हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर, ये दिया हुआ था। कंज्यूमर टेंड टू प्रेफर प्रोडक्ट बाय स्टार्टअप ओवर दोज बाय एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। अब यहां पर आप 2 मिनट होल्ड कीजिए, यहां पर आप 2 मिनट होल्ड कीजिए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे वो क्या बोल रहा है, कंज्यूमर टेंड टू प्रेफर प्रोडक्ट बाय स्टार्टअप देन दोज ऑफ एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया था कि कंज्यूमर प्रेफर करते हैं स्टार्टअप के प्रोडक्ट। कंज्यूमर शायद स्टार्टअप के प्रोडक्ट जाते हैं क्योंकि वो सस्ते हैं। कंज्यूमर स्टार्टअप के पास जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या बोला, ऊपर साफ साफ बोला था कि जितने कम ऑप्शंस उतना जल्दी आप डिसीजन लेते हैं। सो दैट इज द रीजन। प्रेफरेंस इज नॉट द रीजन। आई कांट इन्फर दैट कि कंज्यूमर जो है वो स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। द रीजन इज क्योंकि उन्हें चॉइस कम मिलती है। प्रेफरेंस इज नॉट द इशू। चॉइस और प्रेफरेंस के अंदर डिफरेंस है, और यहां पर जिस तरीके से मैं आपके साथ खेला, पेपर सेटर भी आपके साथ खेल सकता है, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू डू। प्रेफरिंग प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर, और बाकी सारी चीजें तो साफ साफ हम इन्फर कर ही सकते हैं। यहां पर हमें इन्फ्लुएंसर की बात दी हुई थी, यहां पर उन्होंने साफ साफ बोल रखा था दैट इट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग, आपको बहुत कुछ चीजें मिलती है। सो द ओनली ऑप्शन व्हिच यू कांट इन्फर इज ऑप्शन नंबर 2। विद दिस लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल वीकन द ऑथर क्लेम एक्सेप्ट। 4 चीजें जो है वो ऑथर के क्लेम को वीकन कर रही हैं, उससे अपोजिट बात कर रही हैं, और एक ऑथर को सपोर्ट कर रहा है। एंड द आंसर इज व्हाट? लेट्स सी। प्रोडक्ट ऑप्शन इंक्रीज मार्केट कंपटीशन, ब्रिंगिंग डाउन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज व्हिच इन टर्न इंक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ द पुअर। ये ऑथर के आर्गुमेंट को क्या करेगा? वीकन कर देगा। ऑथर ने बोला था आप पुअर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, इन्होंने बोला पुअर की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। ऑथर ने बोला आप ब्रांड्स वगैरह कोई काम नहीं करते, स्पेशलाइज में जाओ, ये बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑप्शन रखो। सो ये ऑथर से एग्जैक्टली वीक अपोजिट बात कर रहे हैं, तो ये ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीकन कर रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। सेकंड, द एनुअल सेल्स ग्रोथ ऑफ द कंपनी की एनुअल सेल्स ग्रोथ जो है, जिनके पास फ्यूअर प्रोडक्ट्स है, स्टार्टअप ऑप्शन, फ्यूअर प्रोडक्ट ऑप्शंस were higher than those of the companies which curated their product for targeted customer। वो बोल रहे हैं स्टार्टअप का जो ग्रोथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बिग ब्रांड्स। और यहां लास्ट में उसने क्या क्या लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर बेस्ड ऑन $100 million बाय वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। अब यहां पर वो बोल रहा है लास्ट में अगर आप देखोगे, देयर मे बी नो वे टू ऑप्ट आउट ऑफ स्टफ बाय बाइंग इनटू द राइट थिंग। अब वो बारी बारी ये बोल रहा है दे आर एक्सपेक्टिंग अ स्टीप ग्रोथ रेट। यहां पर ये फ्यूअर प्रोडक्ट से नहीं चल सकते हैं, इन्हें स्टीप ग्रोथ रेट के लिए और चीजें चाहिए, तो मैं इन्फर कर पा रहा हूं कि उनकी हालत अभी खराब है। तो ये मेरा आंसर हो सकता है, ये ऑथर को सपोर्ट कर रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है, राइट? ये मेरा आंसर, सॉरी होल्ड ऑन, द एनुअल ग्रोथ सेल्स ऑफ द कंपनी विद फ्यूअर प्रोडक्ट ऑप्शन वर हायर देन दैट ऑफ द कंपनी which curated their, yes, so ये ऑथर के अपोजिट के अंदर बात करेंगे। ऑथर जो बोल रहा है,
ऑथर बोल रहा है एनुअल ग्रोथ सेल ऑफ द कंपनी विद फ्यूअर प्रोडक्ट हायर है, ऐसा ऑथर ने नहीं बोला है, सो इसको मैं अभी नहीं बोलूंगा, ये मेरा आंसर हो सकता है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। नेक्स्ट, द एम्पावरमेंट फेल्ट बाय परचेजर्स in buying a commodity were directly proportional to the number of options। अगेन ये अपोजिट बात कर रहा है, अगेन ये अपोजिट बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि अगर ज्यादा ऑप्शंस होंगे तो ज्यादा अच्छा है। और लास्ट, द एनुअल सेल ऑफ द कंपनी दैट हायर्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स वर 40% लेस देन दोज हु डिड नॉट। बोल रहा है कि सेल ऑफ कंपनीज अगर आप लोगों के जिन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग के लिए, उनकी जो प्रोडक्ट थी वो 40% लेस था देन जिनके पास नहीं था। अगेन ये जो ऑथर है उसके आर्गुमेंट को वीकन कर रहा है ऑथर ने, तो जबकि ये बोला था कि वो उसको बढ़ा देता है। सो ये तीन चीजें वीकन कर रहे हैं। अब सेकंड ऑप्शन जो मैं बोल रहा था, सेकंड ऑप्शन के अंदर व्हाट इट इज सेइंग इज, सेकंड ऑप्शन में ऑथर बोल रहा है कि इन्हें और प्रोडक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा लगा हुआ है इनके ऊपर, सो ये ऐसे जिंदा नहीं रह सकते। और यहां क्या लिखा हुआ है, एनुअल सेल्स ग्रोथ ऑफ द कंपनीज विद फ्यूअर प्रोडक्ट्स ऑप्शंस वर हायर देन दैट ऑफ द कंपनीज व्हिच क्यूरेटेड प्रोडक्ट फॉर टारगेट कस्टमर्स। इसके बारे में अगर तुम देखोगे, एनुअल सेल्स ग्रोथ के बारे में अगर देखोगे तो हमें कहीं पर पता नहीं लग रहा है, सेल्स ग्रोथ के बारे में हमें कहीं पता नहीं लग रहा है। ऑल वी कैन से दिस 1, 3 एंड 4 इज वीकनिंग, बट सेकंड क्या करेगा मुझे इसके बारे में ऑप्शन नहीं दे रखा है यहां पर, इसीलिए मैं सेकंड ऑप्शन को मार्क करूंगा। Because the same is not given here, so I don't know what they are talking about, और इसीलिए हम इसको मार्क करके आएंगे because this is the option जो कि उसके आर्गुमेंट को वीकन नहीं कर रहा है। Clear everyone? Right? I hope it is. And let's move to the last question of this passage. Which of the following hypothetical statement, considering this statement to be hypothetical, अगर ऐसा होता तो would add the least depth to the author prediction of the fate of startup offering new product options? Right? वो क्या बोलना चाह रहा है, अगर मैं हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट को मान लूं, एक ऑप्शन जो कि बहुत ही लीस्ट डेप्थ देगा ऑथर के प्रिडिक्शन को, किस प्रिडिक्शन को, फेट ऑफ द स्टार्टअप ऑफरिंग फ्यू प्रोडक्ट ऑप्शन। ऑथर ने क्या बोला था, जो स्टार्टअप नए प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो इवेंचुअली आने वाले टाइम में माइट भी ऐसा हो सकता है कि वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ना दे और वो बाकी चीजों में चले जाएं, और इसमें उन्होंने क्या बोला है, इस चीज को लीस्ट डेप्थ देगा, मतलब इससे लीस्ट एग्री करेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन, एक एक करके बात करते हैं। पहला ऑप्शन, विद कैस्पर एंड ग्लॉसियर वेंचरिंग इनटू द न्यू प्रोडक्ट रेंजेस देयर रेगुलर कस्टमर्स स्टार्ट लूजिंग ट्रस्ट इन द कंपनीज एंड देयर प्रोडक्ट। ये बिल्कुल डेप्थ देगा, ये बिल्कुल डेप्थ देगा ऑथर के आर्गुमेंट को क्योंकि ऑथर ने क्या बोला था, वो नई जगह चले जाएंगे और ये भी बाकी ही कंपनी की तरह हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल डेप्थ दे रहा है, ये आंसर नहीं होगा। सेकंड, स्टार्टअप विद फ्यू प्रोडक्ट ऑप्शंस आर नो एक्सेप्शन टू द अमेरिकन कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, बोला है दैट इज डीपली डिवाइडेड along the class lines, right? Again ये इसको डेप्थ देगा बिकॉज ऑथर भी यही चीज बोल रहा है, ऑथर भी यही चीज बोल रहा है कि भैया ये भी कुछ खास नहीं करने वाले, ये भी इवेंचुअली उसी तरफ चले जाएंगे। थर्ड ऑप्शन, एन एक्सपोनेंशियल सर्ज इन देयर सेल्स, इन स्टार्टअप की अगर सेल्स बढ़ जाती है टू मीट देयर डिजायर्ड प्रॉफिट गोल, और ये अपना प्रॉफिट गोल मीट कर लेंगे विदाउट एक्सपांडिंग देयर प्रोडक्ट कैटालॉग, ये नहीं होने वाला बिकॉज ऑथर ने साफ साफ बोला है दैट कांट बी अचीव्ड बाय सेलिंग वन ग्रेट मैट्रेस, दैट कांट बी अचीव्ड। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज माय राइट आंसर। और फोर्थ क्या बोल रहा है, विद द मोटिव ऑफ प्रमोटिंग सर्टेन राइवल कंपनीज द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डबल द टैक्स रेट। अगेन इससे कोई लेना देना नहीं है, सो आई एम लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन व्हिच इज ऑप्शन नंबर 3। और अगर आप देखेंगे मैंने हर क्वेश्चन के अंदर आपको चारों ऑप्शंस का लॉजिक दिया है, क्यों होगा और क्यों नहीं। फिर भी अगर आपको डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड व्हेन आई विल बी कमिंग इन माय अदर लेक्चर सीरीज आल्सो, वहां भी मैं इस बारे में बात कर सकता हूं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं सो डू गिव मी द फीडबैक। लास्ट में मेरा नंबर देके जाऊंगा, अगर आप वीडियो सुनने के बाद उस नंबर पे पिंग कर सकते हैं, एंड देन प्रोबेबली आई कैन गिव यू द रिप्लाई देयर एज वेल आफ्टर लिसनिंग टू द वीडियो। Let's
मूव टू पैसेज नंबर 4 और हमेशा की तरह इस पैसेज के अंदर भी आप इसको पॉज करेंगे वीडियो को 7 मिनट के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस पैसेज को सॉल्व करेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, हमारे बचपन की याद आ गई अलादीन। सर बचपन की याद तो आ गई बट इतना अलादीन कहां से आए तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हम तो सिर्फ अलादीन को उड़ते हुए देखा है और जिन के साथ देखा है ना। चलो लेट्स सी। इन द पास्ट के अंदर क्रेडिट फॉर टेलिंग द टेल ऑफ अलादीन हैज ऑफन गॉन टू एंटोनी गैलेंड। सो ये भाई साहब थे, ये अंकल थे जिन्होंने अलादीन की स्टोरी लिखी थी और पास्ट में उनको क्रेडिट दिया जाता था। The first European translator, he was a European, he was the first European translator of Arabian Nights, which started as a series of translations of an incomplete manuscript of a medieval Arabic history collection. So यहाँ से 2-3 चीजें समझ में आ रही हैं। It was a European translation of Arabic Nights, point number 1. It was an incomplete manuscript, point number 2. And the time era was Arabic story collection, medieval Arabic story collection के अंदर था। But those tales were of medieval origin. और वो जो tales थी जहां शुरू हुआ था incomplete manuscript, ये medieval origin की थी। अलादीन में भी a more recent invention. इसके अंदर जो अलादीन, वो अरेबिक स्टोरीज के अंदर जो अलादीन है, ये शायद एक recent invention था, ये medieval का शायद invention नहीं था। Right? Maybe. इसलिए कर रहा हूं maybe। यहां पर will आ गया तो काम खत्म ऑप्शन के अंदर। Scholars have not found a manuscript of the story that predate the version published in 1712 by Galland. So क्यों इसको क्रेडिट दिया जाता था? बिकॉज जो स्कॉलर्स थे उन्हें कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला जो कि वर्जन 1712 में गैलेंड ने दिया था, उससे पहले कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला। सो इससे ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि गैलेंड ने अपनी स्टोरी के अंदर अलादीन को लाए थे। Galland who wrote in his diary that he first heard the tale from a Syrian storyteller from Aleppo named Hana Diab। और गैलेंड ने क्या बोला था? इन्होंने फर्स्ट टाइम ये टेल सुनी थी हला दयाब से और स्कॉलर्स बोल रहे हैं कि ये मैन्युस्क्रिप्ट उन्हें कहीं मिली नहीं। Despite the fantastical elements of the story, scholars now think the main character may actually be based on a real person, real experience। वो क्या बोल रहे हैं? बिकॉज हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता कि ये टेल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। इट मे बी बेस्ड ऑन अ रियल पर्सन, रियल एक्सपीरियंस। इट मे बी आई एम एक्सप्लेनिंग दैट अलादीन के अंदर ये होता था, वो होता था। इट प्रोबेबली हैपेंड विद मी, राइट? दो गैलेंड नेवर क्रेडिट दियाब। सो दिस गैलेंड, जो कि हमेशा से होता है, इन अंकल ने दियाब को कभी भी क्रेडिट नहीं दिया। इट वाज लाइक हिज ओन वर्क इन हिज पब्लिश्ड ट्रांसलेशन ऑफ द अरेबियन नाइट स्टोरीज। उन्होंने कभी भी दियाब को क्रेडिट नहीं दिया। दियाब रोट समथिंग ऑफ हिज ओन। उन्होंने अपने आप भी कुछ लिखा था, एक ट्रैवलॉग लिखा था। ट्रैवलॉग जैसे ब्लॉग होता है वैसे ट्रैवलॉग होता है। ब्लॉग रिलेटेड टू ट्रैवल, ब्लॉग रिलेटेड टू ट्रैवल इज ट्रैवलॉग। अ ट्रैवलॉग पेन्ड इन द मिड 18th सेंचुरी। उन्होंने खुद लिखी थी। सो इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया गैलेंड ने, दियाब ने खुद लिखी थी। In it, उसके अंदर he recalls telling Galland the story of Aladdin। उन्होंने बोला था मैंने गैलेंड करके आदमी को अलादीन की स्टोरी सुनाई थी and describe his own hard knocks upbringing and the way he marveled at the extravagance of the Versailles। So उन्होंने किस तरीके से अपने खुद एक कठिन रास्ता चुना, किस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई, किस तरीके से वर्सेलाइज, ये सारी चीजें वो बोल रहे थे, मैंने गैलेंड को बताई है। The description he uses were very similar to the description of the lavish place that ended up in the Galland version of the Aladdin story। और वो डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने बताया था गैलेंड की स्टोरी में आया था। तो यहां से पता लग रहा है कि इन अंकल ने इन स्टोरी को सुनाया था, ये गैलेंड का खुद का वर्जन नहीं था। Therefore, ऑथर, ये जो पोलो लेमोस है, इन्होंने, इनका पूरा नाम है पोलो लेमोस हॉर्ता। तो ऑथर ने क्या बिलीव किया? अलादीन माइट बी द यंग Arab Maronite from Aleppo, marveling at the jewels and the riches of Versailles। तो औरता ये बिलीव करते हैं ये अलादीन जो है ये यंग अरब लड़का था जो कि बेसिकली marveling at the jewels and the riches of Versailles। So that's what scholars are pointing out। For 300 years, scholars thought that rag to riches story of Aladdin might have been inspired by the plot of the French fairy tales that came out around the same time, or that the story was invented in the that। सो इससे पहले तक, अब यहां पर स्कॉलर्स क्या बिलीव कर रहे हैं कि एक रियल स्टोरी थी, ये दियाब के साथ ऐसा हुआ होगा।
और उससे पहले तक ऑथर ये बिलीव करते थे कि ये फ्रेंच फेरी टेल से इंस्पायर हुई है with stereotypical exotic Middle Eastern luxuries that were prevalent then. So ये sorry for this space, ये सारी चीजें एक साथ दी हुई है कि पहले ऐसा सोचा जाता था कि ये फ्रेंच फेरी टेल से इंस्पायर हुई है, ठीक है. The idea that Diab might have based on his own life the experience of a Middle Eastern man encountering the French, not vice versa, flips the script. अभी तक ऐसा सोचा आ रहा था कि ये इंस्पायर हुई है फ्रेंच फेरी टेल से, और अब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये दियाब की खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है. द एक्सपीरियंस ऑफ अ मिडल ईस्टर्न मैन एनकाउंटरिंग द फ्रेंच. सो मिडल ईस्टर्न मैन किस तरीके से फ्रेंच को एनकाउंटर करता है, ना कि फ्रेंच से स्टोरी है. इसने तो पूरी स्क्रिप्ट को ही वाइसा वर्सा उल्टा कर दिया. सोचो, पहले ऐसा बोला जा रहा था हम इंस्पायर हुए हैं फ्रेंच, मतलब हमने फ्रेंच से इंस्पायर हुआ, स्टोरी लिख डाली. यहां बोल रहा है हम स्टोरी लिख रहे थे, फ्रेंच में गए और वहां जाके पूरा स्क्रिप्ट ही उल्टा हो गया. दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. According to Horta, Diab was ideally placed to embody the overlapping world of East and West. He was the guy who was properly placed, जो कि ईस्ट और वेस्ट की स्टोरी सुना सकता था, बिकॉज ईस्ट का गाय वेस्ट के अंदर चला गया. ब्लेंडिंग द स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन ऑफ हिज होमलैंड ईस्ट का स्टोरी टेलिंग का जो ट्रेडिशन है उसको ब्लेंड कर दिया विद हिज यूथफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रांस. ठीक है. टू द स्कॉलर्स हु स्टडी द टेल, वो स्कॉलर जो इस टेल को स्टडी कर रहे हैं, इसका जो ड्रामा है, इसके नरेशन के अंदर जो ड्रामा है, isn't the only reason. वो लोग ये बोल रहे हैं the storytellers keep finding reason to return to Aladdin. It's not the only reason. It reflects not only a history of French and Middle East, but also Middle Easterners like Diab coming to Paris, France के अंदर, and then speak to the world today. So it's a blend of East and West, as Horta puts it. The day Diab told the story of Aladdin to Galland, there were riots. There were riots due to the food shortage during the winter and spring of 1708 to 1709. जब ये स्टोरी सुनाई जा रही थी, there were riots, इसकी वजह से नहीं, जब ये स्टोरी सुनाई जा रही थी तब उस टाइम रॉइट्स थे, विंटर में, स्प्रिंग में, 1708 से 1709 तक. एंड दियाब अंकल जो थे, he was sensitive to those people in a way that Gallant is not. और उन्होंने जो स्टोरी सुनाई थी उसके अंदर वो सेंसिटिवनेस दिख रहा था जो कि गैलेंट की स्टोरी में नहीं दिख रहा था. जब आप ये डायरी पढ़ेंगे, when you read this diary, you see this solidarity among the Arabs who were in Paris at that time. दियाब जैसे लोग जो पेरिस के अंदर गए थे, उन सबकी जब आप डायरीज पढ़ोगे, they have that solidarities. There is a little in the writing of Gallant, और गैलेंट के अंदर वो रिलेशन नहीं था, वो सॉलिडारिटी नहीं थी, और वो सजेस्ट करता है that he was capable of developing a character like Aladdin with sympathy, but Diab Memorial reveals a narrator adept at capturing the distinct psychology of a young protagonist. वो अलादीन की स्टोरी तो बता सकता है, बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम से दिखती सी थी कि वो दियाब की तरह एक यंग प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, जो कि शायद दियाब खुद थे, उसकी तरह उसको लिख नहीं सकता. एज वेल एज रिकॉग्नाइजिंग द काइंड ऑफ इनजस्टिस एंड अपॉर्चुनिटीज that can transform the path of any youthful adventurer. और जो उन्होंने injustice face किया, जो उन्होंने वहां पर कठिनाइयां फेस करी as a youthful adventurer, वो गैलेंट कभी भी नहीं लिख पाएंगे. तो इससे ये बोल रहे हैं स्कॉलर्स इन शॉर्ट कि भैया दियाब अंकल ग्रेट थे, गैलेंट ने तो सिर्फ उठाया था वहां से माल और माल मसाला लगा के अलादीन बना दिया. बट एक्चुअल क्रेडिट शुड गो टू दियाब. ही वाज द प्रोटैगनिस्ट. उन्होंने शायद अपना एक्सपीरियंस शो किया है coming from eastern side and then going to the stories of the west, right? That's what the passage was talking about. Let's move to question number 1 of this passage and question number 16 of this particular paper. What it is saying, which of the following does not contribute to the passage claim about the authorship of Aladdin? I am sure आप पॉज करके, मैं बीच में जा रहा हूं इसलिए ताकि आप पॉज करके पैसेज को सॉल्व कर पाए. I am sure you are pausing the passage in between, questions in between, reading the passage, trying to solve the questions. Otherwise, it doesn't make any sense to go through the video. Please guys do that as soon as possible. Which of the following does not contribute to the passage claim about the authorship of Aladdin? इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है
जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा पैसेज के क्लेम को कि ऑथर कौन था। पैसेज ये बोल रहा है ऑथर थे दियाब अंकल, और गैलेंड का उनका किस तरीके से सपोर्ट था। दियाब वाज अ प्रोटैगनिस्ट, उन्होंने गैलेंड को बताई थी, गैलेंड ने लिख डाली। इनमें से एक ऑप्शन है जो मार्क नहीं कर रहा, उसको देखते हैं कौन सा है। राइट, द डिपिक्शन ऑफ द एफ्लुएंस ऑफ वर्सेलाइज इन दियाब ट्रेवेलॉग। वो क्या बोल रहा है, जो एफ्लुएंस का मतलब होता है रिचपन, अमीरी, एफ्लुएंट। द डिपिक्शन, जो अमीरी का डिपिक्शन दिया हुआ है, ऑफ वर्सेलाइज, जो कि दिया हुआ है इन दियाब ट्रेवेलॉग, इट इज गिवन वेरी क्लियरली हियर। It is clearly given here. Aladdin might be the young Maronite from Aleppo, marveling at the jewels and the riches of Versailles. So this is given. ये दिया हुआ है तो ये contribute कर रहा है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। Second, the narrative sensibility of Diab travelogue. Narrative sensibility साफ साफ दिया हुआ है। He was sensible. He was sensible in the sense he can relate to what these Eastern guys are basically the attachment, और जो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे वेस्ट में जाके। सो अगेन इट इज देयर। द स्टोरी लाइन ऑफ मैनी फ्रेंच फेरी टेल्स ऑफ द 18th सेंचुरी। गाइस, इस ऑप्शन के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊंगा। फोर्थ, गैलेंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ दियाब इन हिज डायरी। गैलेंड ने बिल्कुल एक्नॉलेज किया था अपनी डायरी के अंदर। राइट, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं नाउ, बिकॉज अब आप बोलोगे कहां किया था, वो ये रहा। सो गैलेंड ने बोला था कि उन्होंने पहली बार जो है ये हाना दियाब से सुना था, ये उन्होंने बोला है। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, द स्टोरी लाइन ऑफ मैनी फ्रेंच फेरी टेल्स, इस वजह से ये ऑप्शन बहुत ज्यादा ब्रॉड बन रहा है। मैनी, भैया यहां पर कहां से बात करी, कहां से बात आया, यहां पर उसने सिर्फ एक चीज बोली थी। क्या चीज बोली थी उसने? Here we go. The experience of the Middle Eastern man encountering the French and not vice versa. बस इतनी सी बात करी थी। मैनी की वजह से ये ऑप्शन बहुत ज्यादा ब्रॉड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टोरी लाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंच फेरी टेल से इंस्पायर है, ऐसा नहीं दे रखा, सिर्फ एक ही स्टोरी से इंस्पायर है। अब मैनी से ये ऑप्शन बहुत ब्रॉड बन गया और ये इसीलिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इस ऑप्शन को हटा दिया जाए। मैं अगेन बोल रहा हूं, मेरी नेक्स्ट क्लास तक के, मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करना। मैं उसके अंदर बताऊंगा आपको कि मैं ऑप्शंस को, जो मैं एक्सट्रीम लिख रहा हूं, ब्रॉड लिख रहा हूं, एलियन लिख रहा हूं, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, मैं किस तरीके से सोच में तुम्हारे को आज बता रहा हूं। मेरा डेवलप, मेरा लॉजिक, मेरा पर्पस है इस वीडियो के लिए आपका लॉजिक डेवलप करना, और इस लॉजिक को और स्ट्रॉन्ग करेंगे हम आने वाले वीडियोस के अंदर। सो बने रहिएगा। एंड एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो एज वेल, in live class we can interact, you can get in touch with me, I can mentor you, I can make your study planner. Let's say if you are making your study planner at this point of time, next 8 months आपको किस तरीके से जाना है, कब आपको टेस्ट देना चाहिए। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है सीधा जाते ही आरसी पे शुरू हो जाए। 3 महीने तक आरसी मत करना 3 महीने तक आरसी, 3 महीने तक सिर्फ एक ये सोचना। मैं इन स्टूडेंट्स, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो कैट 2022 लिखेंगे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं कि आपको आरसी नहीं लिखना है अभी 3 महीने तक। तो आप ये देखो कि इन लोगों को, इन चीजों को पढ़ना कैसे, बिकॉज वहीं पर हालत खराब होने वाली है। सो प्लीज मार्क माय वर्ड्स, गेट इन टच विद मी, एंड इफ यू वांट दीज लाइव क्लासेस, और अगर आपको ऐसी कुछ चीजें सुननी है, यू कैन गेट इन टच विद मी और एनी ऑफ आवर टीम मेंबर्स, राइट? ओके, the author of the passage is most likely to agree with which of the following explanation for the origin of the story of Aladdin। क्या बोल रहा है ऑथर, जो इस पैसेज का ऑथर है, राइट? कहां थे? हॉर्ता थे मेरे ख्याल से, हॉर्ता नहीं, हॉर्ता भी नहीं थे, पैसेज तो किसी और ने लिखा होगा। So the author of the passage is most likely to agree with which of the following explanation for the origin of the story। इनमें से किसके ऊपर ऑथर एग्री करेंगे? क्विकली ट्राई करो आंसर। ओके, बेसिंग इट ऑन हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस। दियाब, सो बोल रहे हैं दियाब का ये खुद के ओन लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ट्रांसमिटेड द स्टोरी ऑफ अलादीन टू गैलेंड, उसने अलादीन की स्टोरी गैलेंड को बताई और जिसने अरेबियन नाइट्स के अंदर डाल दी। मेरा आंसर बिल्कुल हो सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस है आंसर होने के। सेकंड, गैलेंड रिसीव्ड द स्टोरी ऑफ अलादीन फ्रॉम दियाब, ओके, who in turn found it in an incomplete medieval manuscript। दियाब ने इनकम्प्लीट मैन्युस्क्रिप्ट से ली थी, इसका जिक्र कहीं पर भी नहीं हो रखा है। उसने यहां पर बोला था सिर्फ और सिर्फ ये, that
series of translation of incomplete manuscript of a medieval Arabic story collection। ये उसने बात किया था एंटोनी गैलेंड के लिए। यहां वो बोल रहा है कि दियाब ने भी इनकम्प्लीट मैन्युस्क्रिप्ट से ली थी, कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। ये ऑप्शन तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने के लिए दे रखा है, थर्ड ऑप्शन। The story of Aladdin has its origin in an undiscovered incomplete manuscript of a medieval Arabic collection of stories. This can be my answer. This can be my answer. The story of Aladdin, उसका origin is it an undiscovered incomplete manuscript. Okay. इसके अंदर भी दिक्कत है, बताऊंगा। Fourth, Galland derived the story of Aladdin from Diab travelogue in which he recount his fascination with the wealth of Versailles. So गैलेंड ने इस स्टोरी को दियाब के ट्रेवलॉग से डिराइव किया नहीं, गैलेंड ने बोला था मुझे तो दियाब ने सुनाई। सो उसने वहां से डिराइव नहीं की थी, दियाब ने उसको सुनाई थी। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। एम आई राइट? यस, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन आ जाता है। अब अगर इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन आ जाता है तो इसको कंफ्यूजन को दूर करेंगे। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? द स्टोरी ऑफ अलादीन हैज इट ओरिजिन इन एन अनडिस्कवर्ड इनकम्प्लीट मैन्युस्क्रिप्ट। इनकम्प्लीट मैन्युस्क्रिप्ट तो ठीक है, अगर वो डिस्कवरी नहीं की गई तो उसने स्टोरी कैसे लिखी? अगर वो डिस्कवरी नहीं की गई तो उसने स्टोरी कैसे लिखी? यहां पर इनकम्प्लीट मैन्युस्क्रिप्ट तो दे रखा है, बट अनडिस्कवर्ड की बात नहीं हो रखा है। पेपर सेटर तुम्हारे साथ खेल गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को आंसर मार्क कर देना है। क्लियर एवरीवन? आई होप the questions are clear to you guys. With this, let's move to question number 18. Which of the following is the primary reason for why storytellers are still fascinated by the story of Aladdin? अभी भी storytellers, why they are coming to Aladdin again and again? There is something given here, why they are coming with the story. Here we go. To the scholars who study the tale, its narrative drama is not the only reason storytellers keep finding reason to return to Aladdin. ये क्या बोल रहा है? It reflects not only a history of French and Middle East, but also Middle Eastern coming to Paris, and that speaks to our world today, as Horta puts it. Let's see इसका क्या आंसर हो सकता है। The story of Aladdin is evidence of the 18th century French Orientalist attitude. Not given. The traveler experience, मतलब दियाब की बात कर रहे हैं, that inspired the tale of Aladdin resonates even today. देखते हैं। The tale of Aladdin documents the history of Europe. No, not at all. The archetype of the rags to rich story of Aladdin makes it popular even today. So इसके अंदर second should be the right answer. Why? Let's understand. देखो वो क्या बोल रहा है यहां पर। फ्रेंच ओरिएंटलिस्ट एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। उसने बोला था एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंच ओरिएंटलिज्म, और वो क्या है? फैसिनेशन। और ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिख लेना इसको, पहला ऑप्शन बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी में है। फैसिनेशन की बात हो रखी है, ना कि पूरे फ्रेंच ओरिएंटलिस्ट एटीट्यूड की। मेरा पहला ऑप्शन चला गया। हिस्ट्री की बात एनीवेज नहीं हो रखी है। अब मेरे पास जो प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम होनी चाहिए दो ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4। So between 2 and 4, why 2 should be the right answer and why not 4? If you see, because 4 के अंदर यहां लिखा हुआ है the archetype of the rags to the riches story of Aladdin makes it popular even today, और यहां पर उन्होंने साफ उल्टा बोला था। If you see here, for 300 years scholars सोच रहे थे that it has been inspired by the plot of French fairy tales, but they are now the script has been reversed. Now it's not the rag to the rich story. And why second? That the traveler experience that inspired the tale of Aladdin resonate even today. See the last line, what they have written here is but Diab memory reveals a narrator adept at capturing the distinct psychology of a young protagonist, as well as recognizing the kind of injustice and opportunities that can transform the path of any youthful adventurer. जो कोई भी यूथफुल एडवेंचर होगा उसके पाथ को ट्रांसफॉर्म करने में ये बहुत ही ज्यादा, उसका जो मेमोरी जो उसने बनाया है वो इतना ज्यादा यूजफुल होगा, और इसीलिए सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्लियर? सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। एंड इस क्वेश्चन को जो मैं आपको लास्ट पैसेज के अंदर बताया था, इस क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है बिकॉज ये एनी वर्ड इतनी जल्दी क्लिक होना थोड़ा डाउटफुल है, अगर क्लिक हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। विद दिस लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। All of the following serve as evidence for the character of Aladdin being based on Hana Diab except। वो बोल रहा है इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि ये बता रहे हैं हना दियाब के कैरेक्टर के ऊपर अलादीन की स्टोरी बेस्ड है। एक चीज जो नहीं बता रहा है, लेट्स सी। Diab cosmopolitanism and cross cultural experience। Yes, we are talking about moving from east to west, we are talking about moving to Paris। ये सारी रीजन ऐसी है जिस वजह से हम बोल रहे हैं कि भैया ये एविडेंस बता रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। सेकंड, Diab humble origins and class struggle, again given, a travelogue given, again ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों चीजें दी हुई हैं। थर्ड, Diab narration of the original story to Gallant। अब दियाब ने नरेट करी ओरिजिनल स्टोरी टू गैलेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि हाना दियाब के ऊपर बेस्ड है। मैंने कोई स्टोरी आपको नरेट करी या मैं यही स्टोरी अलादीन की आपको नरेट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है पैसेज मैंने लिखा है, मैं कहीं से देख के नरेट कर रहा हूं। सो ये थर्ड जो है ये मेरा आंसर हो सकता है। फोर्थ बोल रहा है दियाब डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेल्थ ऑफ वर्सेलिस इन हिज ट्रैवलॉग, ये भी उसने दिया हुआ है। सो थर्ड इज द ऑप्शन व्हिच इज राइट आंसर। If I am narrating something that doesn't mean कि मेरा कैरेक्टर उसके ऊपर आधारित है। So third option is the right answer। With this, let's move to the last question of this passage, and then we'll move to the last passage of this paper। Which of the following, if true, इनमें से अगर सारे true हैं, would invalidate the inversion that the phrase flips the script refer to। Flips the script, पहले क्वेश्चन समझ लो। Flips कैट के अंदर ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है मैं बता चुका हूं। फ्लिप्स द स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, जो हम पहले सोच रहे थे कि ये स्टोरी फ्रेंच से इंस्पायर्ड है, बट ये तो उल्टा हो गया, ये तो ईस्ट से अंकल आए थे, इन्होंने स्टोरी लिख डाली तो इन्होंने फ्लिप कर दिया। सो फ्लिप द स्क्रिप्ट तो ये है, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, इनमें से अगर कौन सा ऑप्शन मैं क्लिक करूं जो कि इस फ्लिप द स्क्रिप्ट वाली चीज को इनवैलिडेट कर दे कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये तो अभी भी फ्रेंच स्टोरीज पे ही आधारित है। एंटिसिपेट, लॉजिक समझो, आपको वो ऑप्शन ढूंढना है कि ये प्रूव कर दे कि ये तो फ्रेंच स्टोरी पे ही आधारित है। लेट्स स्टार्ट। गैलेंट एक्नॉलेज्ड इन द पब्लिश्ड ट्रांसलेशंस ऑफ अरेबियन नाइट्स दैट ही हर्ड द स्टोरी ऑफ अलादीन फ्रॉम दियाब। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब तो स्क्रिप्ट फ्लिप हो गई, बिकॉज दियाब जो थे वो ईस्ट से थे, गैलेंट ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब ये फ्लिप द स्क्रिप्ट वाली चीज हो गई, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ये तो इसको वैलिडेट कर देगा, ये तो उसको ये तो इसको वैलिडेट कर देगा। द ऑप्शन नंबर 2 विल वैलिडेट, और हमें वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है जो कि इसको इनवैलिडेट करे। ऑप्शन नंबर 2, दियाब ट्रैवलॉग डिस्क्राइब the affluence of the French city of Bordeaux instead of Versailles। So इसके अंदर still we are talking about French city, still we are talking about French city, वो city चाहे कोई भी हो, still we are talking about affluence of French city, ये भी उसको validate कर देगा। मेरा ऑप्शन नंबर 2 चला गया। 3, French fairy tales of 18th century did not have rag to riches plot line like that of the tale of Aladdin। वो बोल रहा है फ्रेंच के अंदर तो ये सारी चीजें थी ही नहीं। अच्छी बात है नहीं थी, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि ये ईस्ट से इंस्पायर होगा, तो फ्लिप द स्क्रिप्ट तो यहां पर भी नहीं होगा। फोर्थ, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपुलेंस इन हाना दियाब एंड एंटोनी गैलेंट नरेटिव्स बोर नो रिजेम्बलेंस टू ईच अदर। ये मेरा आंसर हो सकता है कि भैया ये जो दोनों चीजों की आप बात कर रहे हो, इन दोनों में कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं है, इन दोनों स्टोरीज के अंदर कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं है, तो आप फ्लिप द स्क्रिप्ट वाली बात कर क्यों रहे हो। द आइडिया दैट दियाब माइट हैव बेस्ड इट ऑन हिज ओन लाइफ, द एक्सपीरियंस ऑफ अ मिडल ईस्टर्न मैन एनकाउंटरिंग द फ्रेंच, नॉट वाइस वर्सा, इट विल फ्लिप द स्क्रिप्ट। तो अगर इन दोनों में रिजेम्बलेंस ही नहीं है तो फ्लिप द स्क्रिप्ट वाली बात ही नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Right? So this is how the passage needs to be solved. Quickly, if I move to this passage, question number 16 definitely to be attempted +3. Question number 17
definitely to be attempted, +3 again. Question number 18, primary stories they are still fascinated, अगेन यहां पर गलती हो सकती है. 19 के अंदर अगेन आई वुड से +3 एंड 20th आप छोड़ सकते हो. अगेन 3 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन दिस पर्टिकुलर पैसेज. ठीक है. एंड विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट पैसेज. इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने बोला था, हम लोग आज जो बात कंप्लीट कर देंगे ओनली ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड मैं नेक्स्ट FanCATstic वीडियो के अंदर आऊंगा जहां पर मैं वर्बल एबिलिटी के सारे पैरा जंबल्स, ऑड सेंटेंस पैरा जंबल्स, पैरा समरी सॉल्व करूंगा कैट 2019 स्लॉट 1 पेपर का. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जहां हम लोग अभी क्लास की बात कर रहे थे, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी जो मैं बोल रहा हूं. ई कोचिंग पे आपको मेक माई टेस्ट मिलेगा. अब तक क्या हो रहा था कि भैया आप हमारे हिसाब से टेस्ट देंगे, अब हमने ये भी आपको दे दिया है, आप अपने हिसाब से टेस्ट को क्यूरेट करो. आपको हार्ड पैसेज चाहिए, आपको इजी पैसेज चाहिए, आपको मॉडरेट पैसेज चाहिए, आपको 5 क्वेश्चन चाहिए, 4 क्वेश्चंस चाहिए, 6 क्वेश्चंस चाहिए, आपको मॉक टेस्ट के अंदर 34 क्वेश्चन चाहिए, 26 चाहिए, 25 चाहिए. आप ये सारी चीजें अपने हिसाब से चूज कर सकते हो. ई कोचिंग मेक माई टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाके आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी. ई कोचिंग पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरे काफी वीडियोस वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं, वो भी आप सुन सकते हैं. एंड विद दिस लेट्स मूव टू पैसेज नंबर 5. ओके, आई एम श्योर ये पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा. अगेन डिफिकल्ट इसलिए लगा होगा, जो मैं मेरे लाइव क्लास के स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं कि so whenever we talk with the students, so I'm sure इसमें से काफी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स भी मेरा इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे होंगे. मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कैट के फेवरेट टॉपिक है. ये हर साल आएंगे. मैं कह रहा हूं मेरे को लास्ट 4 साल तो हो गया, आप पेपर देख लेना, मैं एक ना एक पैसेज एनवायरमेंट के ऊपर देखता हूं. और इस बार भी मुझे उम्मीद है राइट 2021 के अंदर कि कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंज के कॉप समिट चल रहा है, कुछ ना कुछ कॉप 32 समिट के हिसाब से कोई ना कोई तो ये आएगा ही आएगा पैसेज. Scientists recently discovered that emperor penguins, one of the Antarctica's most celebrated species, employ a particularly unusual technique for surviving the daily chill. अब वो क्या बोल रहे हैं साइंटिस्ट राइट, कि एक पेंगुइन है जो कि अंटार्कटिका में पाई जाती है. उस पेंगुइन है, उसको बोला जाता है एम्परर पेंगुइन, जो कि बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड स्पीशीज है. और ये एक अनयूजुअल टेक्निक यूज करते हैं जो कि डेली चिल, बिकॉज वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है, उस डेली चिल को सरवाइव करने के लिए. As detailed in an article published today in the journal Biology Letters, the bird minimize the heat loss by keeping the outer surface of their plumage below the temperature of surrounding air. अब वो क्या बोल रहा है, यहां से आपका पैसेज का लॉजिक शुरू हो जाता है, यहां से आपको पैसेज का मेन आइडिया यूज करना शुरू करना है. वो क्या बोल रहा है, बर्ड मिनिमाइज करते हैं हीट लॉस, उनके बॉडी टेम्परेचर. हीट लॉस ना हो, हीट लॉस होगा तो ठंड लगेगी, हीट लॉस ना हो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए जो उनका आउटर सरफेस है, उनका जो आउटर सरफेस है प्लमेज का, उस आउटर सरफेस को टेम्परेचर को और भी ठंडा रखते हैं एज कंपेयर टू द सराउंडिंग एयर. बाहर की एयर जो है उससे भी टेम्परेचर को कम रखते हैं, किसमें, आउटर लेयर पे, आउटर लेयर पे उससे भी कम रखते हैं, और इस वजह से हीट जो है वो बाहर नहीं निकलती है. देखते हैं कैसे, साइंस है थोड़ी बहुत. At the same time, the penguin's thick plumage insulate their body and keeps it toasty. ठंडा रखने के बावजूद आउटर लेयर, वो जो थिक प्लूमेट है वो पूरी बॉडी को इंसुलेट करके रखती है, ताकि जो अंदर हीट है वो अंदर ही ट्रैप रहे और उसको एकदम गरम रख सके, टोस्ट रख सके. The researcher analyzed thermographic images. रिसर्चर का काम है, कुछ भी करते रहते हैं. उन्होंने थर्मोग्राफिक इमेजेस को एनालाइज किया, टेकन ओवर रफली अ मंथ ड्यूरिंग जून 2008. ड्यूरिंग दैट पीरियड एवरेज टेम्परेचर, एवरेज एयर का जो टेम्परेचर है, इट वाज 0.02 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. एयर का टेम्परेचर, बाहर की एयर का टेम्परेचर, प्लमेज का टेम्परेचर और भी कम होना चाहिए एज पर फर्स्ट पैराग्राफ. So average air temperature 0.32. At the same time, the majority of the plumage
covering the penguin bodies were even colder, जो कि पहले पैराग्राफ में लिख दिया है. The surface of their warmest body part, their feet, was 1.76. जो feet था, जो एकदम सबसे warm body part होता है, उसका टेम्परेचर 1.76. इसका कोल्ड होगा. ये देखो दो चीजें आ गई हैं. प्लमेज जो कवर हो रही है वो इससे भी कोल्ड होंगी, बट जो सबसे वार्म स्पेस है उनका जो फीट है उसका है 1.76. बट द प्लमेज ऑन देयर हेड, चेस्ट एंड बैक. अब देखो यहां पर जो उनके हेड, चेस्ट और बैक पे जो कवरेज है उसका टेम्परेचर इनसे कम है, -1.84, -7.24 एंड -9.76 रिस्पेक्टिवली. मतलब चेस्ट का टेम्परेचर -7.25, चेस्ट की जो बाहर का आउटर कवरिंग है, बैक का आउटर कवरिंग -9.76 और हेड का -1.84. ये ठंडा है और एयर टेम्परेचर 0.32 है. इस वजह से अंदर की हीट बाहर नहीं जाती, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं. इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं आगे देखते हैं. क्या बोल रहा है आगे? The entire outer surface of the penguin bodies was below freezing at all times. ओवरऑल नियरली द एंटायर आउटर सरफेस जो उसका कवरेज है वो बिलो फ्रीजिंग है, मतलब माइनस में है वो, एक्सेप्ट फॉर देयर आईज एंड बीक्स. आईज और बीक्स क्या माइनस में नहीं रहता है. साइंटिस्ट ऑल्सो यूज अ कंप्यूटर स्टिमुलेशन टू डिटरमाइन हाउ मच हीट वाज लॉस्ट और गेन्ड फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. कितना हीट जा रहा है, कितना हीट अंदर आ रहा है, और उन्होंने डिस्कवर किया बाय कीपिंग देयर आउटर सरफेस बिलो एयर टेम्परेचर the birds might paradoxically be able to draw very slight amount of heat from the air around them. अब यही अनयूजुअल टेक्निक है कि अपना कवरेज जो है वो ठंडा रखने के बावजूद, अपना कवरेज बाहर की टेम्परेचर से और ठंडा रखने के बावजूद वो अंदर से गर्म रहते हैं, और इसी को वो पैराडॉक्सिकली कंक्लूड कर रहा है. द की क्या है? अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है टू टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जो कि किसी टाइम में फिजिक्स में हमने पढ़ा था, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन. ये आपके माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी यूज होते हैं. हाँ, मैं इस पे नहीं आऊंगा डिटेल पे, आधे लोग वीडियो को बंद कर देंगे. रेडिएशन और कन्वेक्शन की वजह से ये सब कुछ होता है. क्या होता है समझते हैं. द पेंगुइन्स डू लूज इंटरनल बॉडी हीट टू द सराउंडिंग एयर. अब सराउंडिंग एयर ठंडी है तो पेंगुइन अपने अंदर की हीट तो लूज करेंगे, ऐसा नहीं है लूज नहीं करेंगे. ऐसा कोई वो पूरा मतलब कुछ जो जादुई शक्ति नहीं लेके आए हैं, ये साइंस है. वो बोल रहा है पेंगुइन्स डू लूज इंटरनल बॉडी हीट ड्यू टू द सराउंडिंग एयर थ्रू थर्मल रेडिएशन, जस्ट एज अवर बॉडी डू ऑन अ कोल्ड डे. ठंड वाले दिन हमारी बॉडी भी ठंडी क्यों लगती है? बिकॉज हमारे अंदर की हीट हम लूज करते हैं. किस वजह से? थर्मल रेडिएशन की वजह से. बिकॉज देयर बॉडीज आर वार्मर देन सराउंडिंग एयर, हीट ग्रेजुअली रेडिएट्स आउटवर्ड ओवर टाइम, मूविंग फ्रॉम वार्मर मटेरियल टू अ कोल्डर वन, जो कि सबके साथ होता है. टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर व्हाइल लूजिंग हीट. अब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये लोग भी फूड के मेटाबॉलिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं. जैसे अपन भी खाते हैं तो गर्मी आ जाती है. द पेंगुइन दो हैव एन एडिशनल स्ट्रेटेजी. तो यहां तक तो जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ये भी करते हैं. यहां पर उनकी एक एडिशनल स्ट्रेटेजी है कि उनका जो आउटर प्लमेज है, जो उनका आउटर कवरेज है, इज इवन कोल्डर देन एयर. वो और भी ज्यादा कोल्डर है. सोचो हमारी बॉडी ठंड से भी ज्यादा कोल्ड हो जाए. The stimulation showed that they might gain back a little of this heat through thermal convection, the transfer of heat via the movement of fluid. वो बोल रहा है आपकी जब ये बॉडी का टेम्परेचर, तो उल्टा हो रहा था अभी तक हमारे को ठंड में क्या होती है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारा टेम्परेचर जो हमारी हीट है वो रेडिएट होने लगती है. बिकॉज इनका कवरेज जो है वो मोटा है और ज्यादा ठंडा है एज कंपेयर टू एयर, तो हीट अंदर भी आती है. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं ये? इट गेन बैक अ लिटिल ऑफ दिस हीट थ्रू द थर्मल कन्वेक्शन as the cold Antarctic air cycle around their bodies. Slightly warmer air comes into contact with the plumage and donate minute amount of heat back to the penguins. और इसी तरीके से वो सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि वो जो गर्म हवाएं हैं जो उनके लिए गर्म हो गई 0.32 की, जब वो -7.24 से टकराती हैं तो कुछ हीट अंदर आ जाती है और इस वजह से पेंगुइन सरवाइव करती हैं. Most of this heat, the researcher note, doesn't make it all the way through the plumage. पूरी हीट नहीं जाती, बट कुछ हीट चली जाती है. But it could make a slight difference. At the very least,
The method by which penguin plumage wicks heat from the bitterly cold air that surround it helps to cancel out some of the heat that radiating, मतलब एटलीस्ट अंदर की जो हीट बाहर जा रही है उसको कैंसिल कर देती है. एंड गिवन द एम्परर यूजुअली डिमांडिंग ब्रीडिंग साइकिल, इसकी ब्रीडिंग साइकिल भी बहुत ज्यादा अलग तरीके की होती है कि एक एक जो बोल रहा है वार्म हीट इनके लिए काउंट करती है. सिंस what they have to do, they have to move at least 75 miles to breed. They don't eat anything for 64 days. इसीलिए ये हीट एब्जॉर्ब करना प्लमेज के लिए पेंगुइन के लिए बहुत जरूरी है. इसलिए बोला जाता है भगवान अगर पेट देता है तो कुछ ना कुछ उसका रीजन भी दे देता है, राइट. सो विद दिस लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. In the last sentence of para 3, slightly warmer air and a slightly colder temperature referred to. Slightly warmer air बाहर की थी, ध्यान रखना. Slightly colder जो है वो प्लमेज का था. अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से. Okay, let's see. The air अब slightly warmer और फिर slightly colder. The air inside penguin bodies, no, not at all, kept warm because of metabolism of food and fall in temperature of the body air after it transfer some heat to the plumage. So क्या बोल रहा है, fall in the temperature of the body because ये heat जो है plumage को देती है. प्लमेज को हीट बाहर की एयर देती है, ना कि अंदर की. इसलिए मेरा पहला ऑप्शन चला गया. सेकंड, द कोल्ड एंटार्क्टिक एयर स्लाइटली वार्मर, बाहर की एयर. द कोल्ड एंटार्क्टिक एयर जिसका टेम्परेचर हायर है प्लमेज से, बिल्कुल सही बात है. एंड द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द एंटार्क्टिक एयर आफ्टर इट हैज ट्रांसमिटेड सम हीट टू द प्लमेज, बिल्कुल ये मेरा सही आंसर हो सकता है. थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, उसके ऊपर जाते हैं हम लोग. The air trapped in the plumage which is warmer than the Antarctic air. Slightly warmer air बाहर की थी, Antarctic air थी, ना कि अंदर वाली. The cold Antarctic air बाहर वाली हो सकता है, which becomes warmer because of the heat radiated out of the penguins. No, बाहर की heat, वो ये बोल रहा है पेंगुइन जो है अपनी हीट दे रहे हैं बाहर की एयर को, ऐसा नहीं है. इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. स्लाइटली वार्मर मतलब बाहर की एंटार्क्टिक एयर, स्लाइटली कोल्डर मतलब प्लमेज का टेम्परेचर, और इसीलिए सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्लियर? विद दिस लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड पैराडॉक्सिकली. मतलब क्या था, इन स्पाइट ऑफ, हम ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, हम इंटेलिजेंट है, हमने पैसे समझ लिया है. उसने क्या बोला था, पैराडॉक्सली का मतलब क्या यूज किया था उसने, बाहर का टेम्परेचर से प्लमेज का टेम्परेचर और भी कम कर दिया और इसी तरीके से बचना, इसको उसने पैराडॉक्सिकली सॉल्व किया. लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर 1. कीपिंग अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी कोल्डर हेल्प पेंगुइन कीप देयर बॉडीज वार्मर. आंसर आ गया बिल्कुल, कि उन्होंने प्लमेज को कोल्डर रखा और इस तरीके से पेंगुइन जो है गर्म हो गई. यही तो पैराडॉक्सिकली था. फिर भी हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ देखेंगे. हीट लॉस थ्रू रेडिएशन हैपेंस डिस्पाइट द हीट गेन थ्रू कन्वेक्शन. इसमें पैराडॉक्सिकली क्या हुआ, पैराडॉक्सिकली का उसने रीजन साफ साफ यहां पर दिया था. मैं वापस आपको ले चलता हूं. वो क्या बोल रहा है, द साइंटिस्ट आल्सो यूज अ कंप्यूटर सिमुलेशन टू डिटरमाइन हाउ मच हीट वाज लॉस्ट और गेन्ड फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द बॉडी and discovered by keeping their outer surface below temperature the birds might paradoxically be able to draw very slight amount of heat from the air around them, और इसी तरीके से वो गर्म रह सकते हैं, right? Third, keeping their body colder help penguins keep their plumage warmer. नहीं, plumage की तो cold की बात हुई है, तो exactly opposite बोल रहा है. heat gain through radiation happen despite the heat loss through convection. तो क्या हम तो यहां बात कर रहे हैं कि ये एम्परर अंकल जो है ये गर्म कैसे रहते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं. ओके, इजी वन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिस्पांसिबल फॉर एम्परर पेंगुइन्स लूजिंग बॉडी हीट. क्विकली, इजी वन, साफ फैक्ट बेस्ड है, साफ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिस्पांसिबल फॉर एम्परर पेंगुइन्स लूजिंग बॉडी हीट. एम्परर पेंगुइन्स जो है वो बॉडी हीट लूज क्यों कर देता है, एंड द रीजन कैन बी रिप्रोडक्शन प्रोसेस. क्योंकि उसने साफ यहां पर लिखा था कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर वो 64 डेज तक तो कुछ खाते ही नहीं है, एंड कंजर्विंग कैलोरीज बाय गिविंग अप एज लिटिल हीट एज पॉसिबल इन एब्सोल्युटली क्रूशियल थिंग.
सो इट मे बी रिप्रोडक्शन प्रोसेस, और उन्हें 75 माइल्स तक ट्रैक करना पड़ता है, चलना पड़ता है. दिस कैन बी द रीजन फॉर लूजिंग द बॉडी हीट. प्लमेज तो होगा नहीं तो उल्टा हो जाएगा. फूड मेटाबॉलिज्म से तो एनर्जी आएगी, उल्टा हो जाएगा. थर्मल कन्वेक्शन की यहां बात नहीं होगी. सो आंसर इज रिप्रोडक्शन प्रोसेस. एंड द लास्ट इज all of the following if true would negate the finding of the study report in the passage except. इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि स्टडी की फाइंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, निगेट कर देंगे, बट एक जो है वो अच्छा बच्चा है, वो निगेट नहीं करेगा. और वो आंसर क्या है वो देख लेते हैं. द एवरेज एयर टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2008 in the area of the study were 10 डिग्री फ़ारेनहाइट. उल्टा कर देगा. वो बोल रहा है तुमने एवरेज बोला कितना है, एवरेज कितना बोला था इन्होंने, was 1.76, और यहां बोल रहे हैं भैया एवरेज एयर टेम्परेचर जो रिकॉर्ड है वो है 10 डिग्री. तो तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो. तो ये इसको निगेट कर देगा, ये उसको निगेट कर देगा, बिकॉज तुमने टेम्परेचर की बात को ही उल्टा कर दिया. सेकेंड, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फीट ऑफ द पेंगुइन्स इन द मंथ ऑफ जून 2008 were found to be 2.76 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो उसने क्या बोला था, फीट सबसे वार्मर है. सो 2.76 अगर फीट होता है तो मेरा आंसर बिल्कुल आंसर सही हो सकता है. सबसे वार्मर 2.76 फीट की बात कर रहे हैं. इट कैन डेफिनेटली बी द आंसर. देखो यहां पर उसने बोला है was where was it, yeah, so the surface of their warmest body part, their feet, was average 1.76, और यहां पर क्या बोल रहा है 2.76. अगेन 2.76 के बावजूद भी वो 0.32 से तो ज्यादा ही वार्म है. आंसर हो सकता है, और बाकी 3 चीजें कोल्ड है ही है. थर्ड, द टेम्परेचर ऑफ द प्लमेज ऑन द पेंगुइन हेड, चेस्ट एंड बैक्स. अब ये टेम्परेचर इससे 0.32 से ज्यादा हो गया. अगर ये ज्यादा हो गया तो पूरे पैसेज का लॉजिक ही खत्म हो गया, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन भी चला गया. फोर्थ, द penguin plumage were made of a material that did not allow any heat transfer. अगर हीट ट्रांसफर की बात ही नहीं हो रही तो अगेन पूरा पैसेज जो है वो खत्म हो जाएगा. इसलिए पैसेज नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. So guys, this is what I want to share with you, and this is what CAT's 2019 slot 1 paper is all about. As far as reading comprehension 24 questions are concerned, I'll be back with fantastic video again on next Friday, wherein I'll be talking about verbal ability questions in 2019 slot 1 paper, and similarly I'll be solving all past year papers in these videos, and will be telling you some of the tips and techniques to solve the questions. So stay tuned with me, and if you want some details, this is my number. My name is Prashant. It's 9979848380. You can get in touch with me on this number. My name is Prashant. I do have a Telegram group as well. You can just ping me on this number, wherein I will give you daily basis में passages, videos like this. I'll also be sharing newspapers, online newspaper, Hindu, Times of India, Indian Express, and for that matter, Main, Financial Express, whatever you want to read on a daily basis on my Telegram group. So stay tuned and keep watching Ekoching videos. Thank you.